Hello everyone. All right, this is the Singh from Do I Do Digital, and today's topic that we're going to discuss is human circulatory system. Let's go ahead. Let's see human circulatory system में क्या-क्या चीज़ें हैं. Let's write the topic name. It is human circulatory system. क्या है? Human circulatory system. Yes, everyone. All right. So human circulatory system consists of what all things? It consists of obviously blood जो circulate कर रहा है. किस में कर रहा है? It is circulating in blood vessels, isn't it? Blood vessels like arteries, veins, capillaries, and जो continuously pump हो रहा है by a special heart, isn't it? Isn't it? So this is human heart we're going to talk about. Human circulatory system consists of blood vessels and heart. So obviously the first subtopic जो हमें पता होना चाहिए कि हमारा blood क्या है, इसके components क्या हैं, what are the different types of cells, components that are present in blood. Let us continue. Let's write the subtopic blood here. So क्या पता है हमें blood के बारे में? कुछ चीज़ें तो पता ही हैं भाई. जैसे this is red in color, ma'am. Yes, very good. Red in color, right? This is red because of the pigment hemoglobin, right? Hemoglobin के बारे में हम बाद में discuss करेंगे in RBC. The process of formation of blood. The process of formation of blood is known as hemopoiesis. बोलो मेरे साथ. Hemopoiesis क्या है? It is the process of formation of blood. ठीक है? ये कहाँ हो रही है hemopoiesis? In red bone marrow. Basically कहाँ हो रही है? Red bone marrow में. राइट लेट्स से अगर ये फीमर बोन है इसकी एपीफाइसिस में हो रही है. व्हाट इज एपीफाइसिस पीपल? इन द पेरिफेरी, इन द कॉर्नर्स, एट द एजेस. ठीक है, सो इट इज हैपनिंग इन द एपीफाइसिस ऑफ द बोन. राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फीमर बोन की बात कर रहे हैं तो उसकी पेरीफेरी में हो रही है. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. अब एट द एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में कहाँ बन रहे हैं ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेट में. एट द एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेट इट इज टेकिंग प्लेस, द हेमोपोइसिस प्रोसेस इज हैपनिंग इन द योक सैक. कहाँ हो रही है? इन द योक सैक. इफ योक सैक later on, after yolk sac, it takes place, the hemopoiesis process takes place in liver and then in spleen. Yes everyone, यहाँ तक clear हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? Human circulatory system consists of blood vessels and human heart. Blood is a red color fluid connective tissue, so we can write this as well. It is a fluid connective tissue, isn't it? It's a fluid connective tissue. It's a fluid connective tissue. Fluid connective tissue. Clear हो गया people? It's the fluid connective tissue without any fiber, right? It is red in color, processes hemopoiesis in the epiphysis, yolk sac, then liver, and then clear हो गया. Now what are the components of blood? है ना? We all should know what are the components. There are two components of blood. कितने हैं components? दो हैं. What are those? Blood consists of plasma and it consists of what? Blood cells. क्या चीज़ें होती हैं? एक तो प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होते हैं. लेट्स टेक अ ब्लैंक स्लाइड. एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं एंड देन राइट दिस इंफॉर्मेशन. ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, राइट, एंड इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स. डन. प्लाज्मा कितना है? इट इज़ 90 to 92% इसमें वाटर प्रेजेंट होता है. राइट, प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ 90 to 92% वाटर. राइट, इतना सारा पानी है और 7 to 8% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं. इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं. अलॉन्ग विद दैट प्लाज्मा ऑल्सो हैव सम गैसेज इन इट. क्लियर हो गया? विच गैसेस? हमें पता है देर आर टू गैसेज दैट वी usually talk about. One is oxygen and another is carbon dioxide. Yes everyone, water present है. Organic salts कौन से हैं? Like hormones, proteins. Protein की example दोगे? Albumin. Yes, albumin is the protein that is present. Fibrinogen is the protein that is present, isn't it? So these are the organic salts. Inorganic salts कौन से हैं? Like potassium, sodium, chlorine, isn't it? Chlorine is present. Clear हो गया? So plasma is 90 to 92% water and rest amount is gases, organic and inorganic salts. Clear हो गया? Talking about cells. Cells, there are three types of cells. What are the three types of cells? RBCs, very good, WBC and platelets, isn't it? These are the three types of cells that we talk about, that we know
RBCs, what is the another name of RBCs? They are also known as erythrocytes. They are also known as erythrocytes. WBCs को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स. बोलो मेरे साथ, ल्यूकोसाइट्स. और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स. क्लियर हो गई ये स्लाइड? इज दिस क्लियर पीपल? ब्लड की फॉर्मेशन हेमोपोइसिस, एपीफाइसिस में, योक सैक में, लिवर में और स्प्लीन में एट द एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेट. ठीक है. ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. इट इज प्लाज्मा as well as blood cells. Very good. Plasma is 90% water and 10% organic and organic salts. You can see this. Now let us talk about what is the color of plasma. Anyone? Yes, people. What is the color of plasma? It is pale yellow. Yes, pale yellow is the color. And plasma कहाँ बनता है? It is formed in liver. Yes. Where is the formation of plasma taking place? In the liver. Correct. Now let us talk about each type of blood cell. And blood cell की formation कहाँ होती है? Blood cells कहाँ बनते हैं? Red bone marrow में बनते हैं. Clear हो गया? Now composition of blood. What is the composition of blood? We know it. अगर हमें यहाँ लिखना हो, what is the composition of blood? Blood consists of plasma and blood cells, and these are the three types of blood cells. Complete होगी हमारी information यहाँ तक. Now let's do it. Let's take another blank slide and discuss and understand what is RBC. Different types of cells को अब elaborately पढ़ते हैं. Let's do it. So let's see what is RBC. क्या होता है RBC? What is the another name of RBC? RBC के another form क्या है? बताओ. Yes, erythrocytes. Come on people, the another name is erythrocytes. Now number one, what is the shape of RBC? Come on people, what is the shape? It is discoidal, right? It is discoidal in shape, right? Discoidal in shape होता है, right? Spherical in shape होता है, isn't it? Now जब एक RBC young होता है, when a RBC is young, it has all the cell organelles present. इसके पास सारी cell organelles present होती हैं. Along with that इसके पास nucleus भी होता है, isn't it? Nucleus is also present. When a RBC matures, एक RBC जैसे ही mature होगा, क्या होगा? It will become, there will be no cell organelle present and it will become enucleated. People remember this term. This is the term we use when there is no nucleus present. Enucleated हो जाएगा. Now let's make a RBC. एक RBC बनाते हैं. एक डिस्कॉइडल सा स्ट्रक्चर बनाया हमने और उसके पास ये न्यूक्लियस दिखाया. तो ये कौन सा आरबीसी हुआ? आपका यंग आरबीसी हुआ, राइट? नाउ दिस इज द मैच्योर आरबीसी हैविंग नो सेल ऑर्गेनेली एज वेल एज नो nucleus. That means it has become enucleated. Now why has it become enucleated? Enucleated क्यों हो गया? What is the reason is for its enucleation? Obviously to increase the surface area. इसको खाली करना है इसको. तो खाली कैसे किया? तो क्या हो गया? सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया. क्यों करना है मैम इसको सरफेस एरिया इंक्रीज? सो दैट इट कैन एकोमोडेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन की मैक्सिमम अमाउंट को एकोमोडेट करना है. व्हाट इज हेमोग्लोबिन? इट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट. बोलो मेरे साथ, इट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट. हेमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच हैज टू बी accommodated in the discoidal shape of RBC, which is now without the nucleus, right? Now one कितने करने हैं? Information लिखो. One RBC can accommodate 280 million hemoglobin pigment. लिख लिया? एक RBC के अंदर होने चाहिए 280 million hemoglobin pigments. Let's do it again. RBC, also known as erythrocytes. What is the shape of RBCs? They are discoidal, becomes enucleated to increase the surface area for the maximum accommodation of hemoglobin. One molecule of hemoglobin can accommodate 280 million hemoglobin pigments. Right? यहाँ तक समझ में आ गया? Now, hemoglobin आ गया. Now one molecule, what is the use of hemoglobin? What is the use of hemoglobin? One molecule of hemoglobin can combine with 4 molecules of oxygen. Remember this thing people, very important. One molecule of hemoglobin can combine with 4 molecules of oxygen. To form what? To form oxyhemoglobin. Simple सी बात है. This is how oxygen will be transported in a body. हमारी body में oxygen कैसे transport होगी? By combining it with hemoglobin. तो Hb hemoglobin combine करेगा. Hb combine करेगा किसके साथ? O2 के साथ? Isn't it? So Hb will combine with O2 to form HbO2. Oxygenated hemoglobin बन गया.
ये जो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, दिस इज हाउ द ऑक्सीजन विल बी ट्रांसपोर्ट. ये एग्जाम में आता है, हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन आवर बॉडी? बाय फॉर्मिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बाय कंबाइनिंग इट विद हीमोग्लोबिन. कंप्लीट हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया? राइट. नाउ लेट्स सी, अब हमने देख लिया कि हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनके रेडी हो गया. लेट्स सी हमने जो ऑर्गन्स हैं, जो ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन है उसने टिश्यूज़ को दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया. अब हेमोग्लोबिन इज फ्री. नाउ हेमोग्लोबिन कैन कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड, इजंट इट? लेट्स से ये जो फॉर्मेशन हमने बताई, ये जो फॉर्मेशन हमने बताई कि यार ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन बना, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है. रिवर्सिबल मतलब दिस कैन ब्रेक. जैसे ही ऑक्सीजन टिश्यूज को दी, हेमोग्लोबिन इज फ्री. नाउ दिस हेमोग्लोबिन विल टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू एंड बिकम्स व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर नाउ नोन एज? अब क्या कंबाइन हो गया? कंबाइन हो गया इसी हेमोग्लोबिन के साथ, जैसे इसने ऑक्सीजन टिश्यूज को दे दी, इसके साथ कंबाइन होगी कार्बन डाइऑक्साइड. क्या बनाएगी? What will be the end product? Anyone? It is not carboxy. It is carb-aminohemoglobin. बोलो मेरे साथ, carb-aminohemoglobin. फर्क समझ में आया? What is oxyhemoglobin? It is oxygen plus hemoglobin. This is how oxygen is transported in our body. जब हेमोग्लोबिन फ्री हो गया हमारा, तो हेमोग्लोबिन किससे कंबाइन कर गया? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर गया. तो क्या बनाया उसने? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्ब अमीनोहेमोग्लोबिन. क्या बनाया? कार्ब अमीनोहेमोग्लोबिन. ठीक है. This is how carbon dioxide can be transported also, and carbon dioxide can also dissolve in the water present in plasma and can transport it, right? अगर हमारा hemoglobin combine हो गया, now let's say कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, अब क्या बनेगा? अब जो आप लोगों ने मुझे बोला था, it is कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन. yes, so कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जल्दी कंबाइन हो जाती है, राइट, रेडिली कंबाइन हो जाती है विद हेमोग्लोबिन एंड फॉर्म्स कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन. तो तीन चीज़ें हो गई, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन एंड कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन. आई मे क्लियर एवरीवन? ऑक्सी हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एंड हेमोग्लोबिन combines, कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन when hemoglobin combines with carbon dioxide, and the third is your when hemoglobin combines with carbon monoxide. क्लियर हो गया? ये है रोल भाई आपके आरबीसीज का, कि आरबीसीज क्या कर रहे हैं, इनके पास एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है, दैट इज हेमोग्लोबिन. अब इतना हम हेमोग्लोबिन कर रहे हैं, लेट्स सी कि ये हेमोग्लोबिन होना कितना चाहिए. दिस हेमोग्लोबिन अमाउंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स सी द अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन. इन केस ऑफ मेल्स इट शुड बी 14 to 16 grams per 100 ml of the blood. क्लियर होगी ये बात? Hemoglobin, in case of females, it should be 12 to 14 grams per 100 ml of the blood. ठीक है, यहाँ तक हो गया. Now इतना नहीं हुआ तो क्या मैम? Then the patient will be known as, the patient would be anemic. The patient will have a disease known as anemia, and the patient would be anemic. Clear हो गया everyone? So hemoglobin is the main thing that you need to remember in RBC. कि RBC की shape कैसी है? It is discoidal. Let's revise RBC. RBC की shape क्या है? Discoidal. What is the mature RBC? How is mature RBC different from young RBC? Mature RBCs will not have cell organelles, will not have even nucleus. It will be enucleated. It becomes enucleated to increase the surface area so that the maximum hemoglobin can be accommodated. कितने? One hemoglobin should combine with, one RBC should have 280 million hemoglobin pigments, and one hemoglobin can combine with 4 molecules of oxygen to form oxyhemoglobin. This hemoglobin, once it is oxygen is given to the tissues in return क्या गिफ्ट देंगी? कार्बन डाइऑक्साइड देंगी. दैट कैन कंबाइन विद द HB एंड कैन फॉर्म कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन. कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड व्हेन हेमोग्लोबिन कंबाइंस विद, व्हेन हेमोग्लोबिन किससे कंबाइन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ. वेरी गुड पीपल. ठीक है, क्लियर हो गए यहाँ तक? नाउ ये जो RBC है, RBC का काउंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. RBC काउंट, लेट अस राइट द काउंट ऑफ RBC. In case of male, it is 5 to 5.5 million per mm cube of blood. ठीक है. In case of female, it is 4.5 to 5 million per mm cube of blood. ठीक होगी बात, राइट? अगर इससे रेशो कम हो जाए, वाई इज, मतलब इतनी पार्शियलिटी क्यों कि मेल में ज़्यादा फीमेल में कम? इन केस ऑफ हेमोग्लोबिन ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट अ फीमेल फॉलोज. दैट इज वाई द हेमोग्लोबिन, भगवान को भी पता है दैट हेमोग्लोबिन विल बी लेस इन केस ऑफ फीमेल्स. क्लियर हो गया? नाउ इफ द अमाउंट ऑफ RBC
कम हो गया, व्हाट इज दैट कंडीशन नोन एज? दिस कंडीशन इज नोन एज, राइट डाउन, जब कोई भी चीज़ कम हो जाती है, कोई भी ब्लड सेल कम हो जाता है फ्रॉम इट्स रिक्वायर्ड अमाउंट, इट इज़ नोन एज एरिथ्रोसाइटोपीनिया। बोलो मेरे साथ, एरिथ्रोसाइटोपीनिया। साइटोपीनिया इज फॉर लेस, ठीक है, इट इज़ फॉर दी लेस ऑफ आरबीसी। अगर ज़्यादा हो गया, दिस कंडीशन इज नोन एज एरिथ्रोसाइटोसिस। बोलो, साइटोसिस इज इंक्रीज। क्लियर हो गया एवरीवन? देख लें एक बार, देख लें आरबीसी को। यस, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, डन। राइट, यहाँ देखते हैं हम आरबीसी को, एंड अनीमिया कंडीशन बता दी, एरिथ्रोसाइटोसिस कंडीशन बता दी, और एरिथ्रोसाइटोपीनिया कंडीशन बता दी, डन हो गया एवरीवन। नाउ लेट्स गो अहेड विद द डब्ल्यूबीसीज। एक और स्लाइड ले लेते हैं, ये क्या बता रहे हैं? दे आर टेलिंग यू सम इंफॉर्मेशन, ये भी देख लेते हैं। ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, स्टेटमेंट पढ़ो, ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग गैसेज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ पे? प्लाज्मा के थ्रू, राइट, बिकॉज इट हैज गैसेज। एंड ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? बाय कंबाइनिंग विद, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? बाय कंबाइनिंग विद हेमोग्लोबिन, बाय फॉर्मिंग ऑक्सी हेमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो सकती है? इट कैन डिजॉल्व इन वाटर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, एंड इट कैन ऑल्सो कंबाइन विद हेमोग्लोबिन ऑल्सो टू फॉर्म कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग वेस्ट प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, प्लाज्मा में आपने देखा, एंड रिमूव्स योर, then this is the RBC, and then it makes up 6 to 8% of the total body weight. Normal adult volume इतना होना चाहिए. Blood is made up of cellular material in a fluid called plasma. Blood is made up of cellular material in a fluid called plasma. Right? Blood is a circulatory tissue, consists of 3 types of cells: red blood cells, leukocytes and thrombocytes. ठीक है? Now let us talk about the second type of cells, that is leukocytes, that is WBCs. So leukocytes, also known as white blood cells, so they have no pigment in it, right? So they have no pigment, कोई pigment नहीं है, तो ये कैसा कलर का होगा? It has to be colorless. क्या शेप होगी? अमीबाइड शेप होगी, मतलब इरेगुलर शेप में होगा आपका WBC। ये रहा उसका न्यूक्लियस, उसके पास न्यूक्लियस भी होगा। क्लियर हो गई ये बात? अब ये समझो कि WBCs इम्यून सेल्स हैं, इम्यूनिटी वाले सेल्स हैं। ये तब हमारे बॉडी में होते तो हमेशा हैं, तब हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाएंगे व्हेन द कंडीशन इज, व्हेन देयर इज एनी पैथोजन इन अ बॉडी, राइट, व्हेन देयर इज एनी इन्फेक्शन इन अ बॉडी, तो WBCs का काउंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज, राइट। लेट्स से अगर डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग, हम तो चलो अच्छे से सिम्टम्स बता देंगे कुछ ऐसा है कि, बट कुछ लोग नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि ये हो रहा है वो हो रहा है। कोई बोल रहा है हमें यहाँ पेन हो रही है, कोई कह रहा है हमें बस बहुत टायर्डनेस हो जाती है, कोई कह रहा है फटीक हो जाता है। तो डॉक्टर विल नॉट अंडरस्टैंड आपके सिम्टम्स, डॉक्टर बोलेगा गो एंड गेट योर ब्लड टेस्ट डन। व्हाट इज दैट ब्लड टेस्ट नोन एज? कंप्लीट ब्लड टेस्ट को बोलते हैं CBC। क्या बोलते हैं? लेट्स राइट इट, CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें आपके RBC भी आ जाएगा, WBCs भी आ जाएगा और ल्यूकोसाइट्स भी आ जाएगा। बट CBC में इसको पता चला कि आपके WBCs का काउंट थोड़ा बढ़ा हुआ है, राइट। व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स दैट देयर इज सम पैथोजन विच हैज एंटर्ड इन योर बॉडी, यस और नो। दैट मीन्स कि जो WBCs हैं इसका टेस्ट एक बार और करवा लेते हैं। सिर्फ स्पेसिफिकली ल्यूकोसाइट्स के टेस्ट को बोलते हैं, स्पेसिफिकली ल्यूकोसाइट्स के टेस्ट को बोलते हैं TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। क्या बोलते हैं? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करवाना? क्योंकि दीज आर immune cells, they are very very important, their count is also very crucial. So count is very crucial. In case of male and female, इनका count क्या होना चाहिए? 6 to 8 million per mm cube of blood. 6 to 8,000, sorry, 6 to 8,000 होने चाहिए, right? 6 to 8 या 6,000 to 8,000, ऐसे लिख लो, 6,000 to 8,000 पर mm क्यूब ऑफ ब्लड, पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात? अब इससे ज़्यादा हो गया तो मैम तो क्या होगा? मैं बता चुकी हूँ, दिस कंडीशन इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस। साइटोसिस क्या होता है? इंक्रीज। साइटोसिस क्या होता है? इंक्रीज। ल्यूकोसाइटोसिस मीन्स व्हेन द काउंट इज इंक्रीज। क्यों काउंट इंक्रीज होगा? दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस, व्हेन देयर इज एनी इन्फेक्शन इन द बॉडी, व्हेन देयर इज एनी इन्फेक्शन इन द बॉडी और देयर इज एनी एंटीजन इन द बॉडी। एंटीजन मतलब दैट causes diseases and can activate the immune cells, that is antigen, isn't it? तो एंटीजन है बॉडी में, is present। ठीक है,
सेकंड कंडीशन बोली हमने, काउंट कम हो गया, WBCs का काउंट बहुत कम हो गया। क्यों हो गया भाई? इसे क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइटोपीनिया। क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइटोपीनिया। क्यों हो गई कंडीशन? जब द पेशेंट इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज लाइक मलेरिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? डन एवरीवन? क्या बोला हमने? ल्यूकोसाइट्स दे हैव नो पिगमेंट, दे आर कलरलेस, दे आर अमीबाइड इन शेप। ये लिखा है हमने। काउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ द ब्लड होने चाहिए। इससे ज़्यादा हो गया तो साइटोसिस, कम हो गया तो साइटोपीनिया। क्लियर हो गया? लेट्स गो हेड। अगर हम WBCs को देखें, ये इतने से ही नहीं है, राइट? इनका इतना ही पार्ट नहीं है हमारी बॉडी में, दे आर इम्यून सेल्स, तो इनका फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। WBCs को हम डिवाइड करते हैं इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज ग्रैनुलोसाइट्स एंड सेकंड इज एग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, डन। ग्रैन्यूल्स, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स अगर उसके साइटोप्लाज्म में है, अगर WBCs के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन ग्रैन्यूल्स हैं तो ये ग्रैनुलोसाइट्स हैं। अगर इसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं हैं तो ये एग्रैनुलोसाइट है। सिंपल सी बात है। एग्रैनुलोसाइट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब 3 है, ये 4 है, कैसे डिस्कस करेंगे हम? देखो, हम इसका ऐसे लिख लेते हैं। बेन 10 आता था ना ये कार्टून, बेन 10 का कार्टून। सो B स्टैंड्स फॉर बेजोफिल्स, याद रखना, बेन बेजोफिल्स, eosinophils and neutrophils। क्लियर हो गया? यस, बेजोफिल्स, eosinophils एंड न्यूट्रोफिल्स। बेजोफिल्स बेसिक डाई से स्टेन कर सकते हैं, eosinophil एसिडिक डाई से स्टेन कर सकते हैं, राइट? एंड न्यूट्रोफिल न्यूट्रल किसी भी डाई से, एनी डाई, राइट? बोथ कैन बी यूज्ड, एनी डाई कैन बी यूज्ड। लेट मी टेक अनदर कलर, अदरवाइज सब कुछ हो जाएगा, राइट? यहाँ तक समझ में आ गया? बेजोफिल्स, eosinophils एंड न्यूट्रोफिल्स। बेजोफिल्स कैसे होते हैं? आई हैव टोल्ड यू दैट WBCs विल हैव न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस होगा। कैसा कैसा न्यूक्लियस होता है? दैट कैन वेरी, द शेप ऑफ द न्यूक्लियस कैन वेरी। क्या ऐसा होता है? बेजोफिल्स का न्यूक्लियस कैसा होता है? लेट्स से अगर ये मैंने साइटोप्लाज्म बनाया, सॉरी न्यूक्लियस बनाया, इसका कैसे होगा? इट विल हैव अ 3-lobed न्यूक्लियस। ये इसके ग्रैन्यूल्स रहे, सो इट विल हैव 3-lobed न्यूक्लियस, 3-lobed न्यूक्लियस। टॉकिंग अबाउट eosinophils, eosinophils का कैसे होगा? इट विल हैव 2-lobed न्यूक्लियस, जैसे मैंने पहना हुआ है, राइट? ईयरफोन्स, मेट्रो वाले, राइट? मेट्रो वाले, एरोप्लेन वाले, पीपल वेयर ईयरफोन्स, राइट? ये ईयरफोन्स जैसे होंगे, राइट? हेडफोन्स जैसे होंगे। सो दे हैव bi-lobed न्यूक्लियस। वी कैन राइट bi-lobed न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूट्रोफिल्स विल बी हैविंग multi-lobed nucleus, है ना? multi-lobed nucleus, so it will have multi-lobed nucleus। किससे स्टेन होगा? बेजोफिल, बेजो से बेजोफिल्स, बेजो से बेसिक डाई, अल्कलाइन डाई, एसिडिक डाई से एसिडिक, और ये न्यूट्रोफिल्स, ये किसी से भी स्टेन हो जाएंगे। ये सबके फ्रेंड्स हैं, ठीक है? जो सबका फ्रेंड होता है वो अच्छा होता है कि बुरा होता है? वो अच्छा ही होता होगा, है ना? सबका फ्रेंड है यार, किसी के लिए भी एवल नहीं सोचता, इजंट इट? नाउ इनके रोल क्या है? कब बेजोफिल्स इंक्रीज होंगे, कब सीनोफिल्स इंक्रीज होंगे और कब न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज होंगे? एक बार ये देखते हैं। बेजोफिल विल इंक्रीज its number when there is any bacterial or viral infection, bacterial or viral infection। eosinophils बढ़ेंगे when there is any worm or allergical reactions, एलर्जिकल रिएक्शंस में इंक्रीज होंगे। टॉकिंग अबाउट न्यूट्रोफिल्स, इनका एक ही काम है, कोई भी चीज़ आ गई है जो बॉडी की नहीं है, एनी नॉन सेल्फ कंपोनेंट विच कैन कॉज डिजीज एंड कैन एक्टिवेट इम्यून सिस्टम, दैट्स एन एंटीजन, इजंट इट? उस एंटीजन को एनगल्फ कर लो, खा जाओ, प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? सो ग्रैनुलोसाइट्स के 3 टाइप, बेन-10, बेजोफिल्स, eosinophils, न्यूट्रोफिल्स। बेजोफिल्स क्या 3-lobed न्यूक्लियस, eosinophil का 2-lobed न्यूक्लियस एंड न्यूट्रोफिल्स का multi-lobed न्यूक्लियस। क्लियर हो गया? टॉकिंग अबाउट ए ग्रैनुलोसाइट्स, इनको देख लेते हैं। ए ग्रैनुलोसाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। इनकी क्या 2 टाइप्स हैं? मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। बोलो मेरे साथ, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ऑब्वियसली इनका भी न्यूक्लियस होगा, डिफरेंट शेप ऑफ न्यूक्लियस होगा। मोनोसाइट्स का जो शेप होती है दैट इज बीन शेप्ड, राइट? किडनी बीन शेप्ड, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड न्यूक्लियस कह सकते हो आप, राइट?
एंड टॉकिंग अबाउट लिम्फोसाइट्स, इट विल हैव हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस, है ना, हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक न्यूक्लियस समझ में आ गए। फंक्शंस बताती हूँ। मोनोसाइट्स कब क्या करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोनोसाइट्स? मोनोसाइट्स लाइक न्यूट्रोफिल्स। अब इनमें में क्या डिफरेंस है? इनके पास ग्रैन्यूल्स होंगे भैया, इजंट इट, ग्रैन्यूल्स होंगे, इनके पास ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे। फंक्शन क्या है न्यूट्रोफिल्स का? फैगोसाइटोसिस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोनोसाइट्स? इट ऑल्सो परफॉर्म्स फैगोसाइटोसिस। ये दोनों के दोनों फैगोसाइटोसिस करने की ट्राई करते हैं, राइट, दे डू फैगोसाइटोसिस। टॉकिंग अबाउट लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं ना, लिम्फोसाइट्स की आगे भी कैटेगरीज होती हैं। लिम्फोसाइट्स आगे डिवाइड होते हैं इनटू बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट, थाइमस एंड बोन मैरो, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स फाइनली एंटीबॉडीज बनाते हैं इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। हमारी बॉडी में एंटीजन आया, हमारी बॉडी में नॉन सेल्फ कॉम्पोनेंट आया विच कैन कॉज डिजीज एंड विच कैन एक्टिवेट द इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज नॉन एज एंटीजन। एंटीजन आया, उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी ना। वो जो एंटीबॉडीज है वो प्रोडक्शन कहाँ से होगी? बी लिम्फोसाइट से। अगर फर्स्ट टाइम एनकाउंटर हुआ है उस पैथोजन से तो इट इज़ गोना टेक लॉन्ग टाइम। अगर सेकेंड एनकाउंटर है या थर्ड एनकाउंटर है तो कुछ बार हमारे पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज मेड होती हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल चिकन पॉक्स हैपन्स ओनली वंस इन योर लाइफ टाइम बिकॉज द सेकेंड, बिकॉज जब वो सेकेंड एनकाउंटर होता है वेरिसिला जोस्टर वायरस से, चिकन पॉक्स वाले कॉजिंग वायरस से, तो हमारे पास ऑलरेडी इन बिल्ड एंटीबॉडीज होती हैं, राइट। तो हम यहाँ होता भी है तो इतना सिवियर नहीं होता है, राइट। सो बी लिम्फोसाइट्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड टी लिम्फोसाइट्स की आगे टाइप्स होती हैं। टी लिम्फोसाइट्स की टाइप क्या होती हैं? लेट्स राइट TH, TH, TC एंड TS, ठीक है। TH इज हेल्पर, C इज साइटोटॉक्सिक, ठीक है, एंड S स्टैंड्स फॉर सप्रेसर। It stands for, S stands for suppressor, ठीक है। हेल्पर, T हेल्पर किसकी हेल्प कर रहा है? TH इज हेल्पिंग बी लिम्फोसाइट्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, साइटोटॉक्सिक टॉक्सिक प्रोड्यूस करके एंटीजन को किल कर रहा है एंड सप्रेस इन दोनों को सप्रेस कर रहा है सो दैट ज़्यादा एंटीबॉडीज, अननेसेसरी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में प्रिपेयर नहीं हो जाए, सो दैट देयर विल बी नो चांस और देयर शुड बी नो चांस ऑफ कॉजिंग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। अगर हमारी बॉडी के टुवर्ड्स ही, हमारे ऑर्गन्स के टुवर्ड्स ही अगर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी तो इट कैन कॉज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। क्लियर एवरीवन? आई होप इट इज़ क्लियर। हमने देख लिया सब कुछ अबाउट WBCs। लेट्स सी, एक बार WBCs को देख लेते हैं। इसको ले आते हैं इस पे, हाँ, लेट्स डू इट। ये है आपका WBCs, इजंट इट, राइट। सो हमने क्या बोला WBCs के बारे में? has no pigment, colorless, amoeboid and it increases its number when there is any infection, leukocytosis हो जाएगा, leukocytopenia हो जाएगा when there is less of WBCs. It is of two types, granulocytes and agranulocytes, basophil, eosinophil, neutrophils. Neutrophils will do phagocytosis and your monocytes will also do phagocytosis. मतलब अगर ये एक कैपिलरी है, ये कैपिलरी है एक, उसमें ये रहे आपके, क्या है ये? आपके न्यूट्रोफिल्स, राइट, जिसका मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है, और ये रहा आपका मोनोसाइट जिसका क्या बीन शेप न्यूक्लियस है, ठीक है। बीन शेप, ये आपके मोनोसाइट्स हैं, ये आपके न्यूट्रोफिल्स हैं, और ये आपका एंटीजन। सो WBCs कैन कम आउट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। व्हाट इज डायापेडिसिस? क्या है ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? डायापेडिसिस। व्हाट इज डायापेडिसिस? What is diapedesis? It is the process of squeezing out of WBCs from the pores present on the walls of capillaries. Blood flow करता है arteries to veins के towards via capillaries, right? Capillaries is the connection between arteries and veins. तो capillary की wall के ऊपर कुछ pores present होते हैं. उस pores से ना ही RBCs, ना ही platelets, but only WBCs can squeeze out. क्योंकि इनकी shape ऐसी होती है, they can squeeze out from the पोर्स, इन पोर्स से ये बाहर आ सकते हैं. ये रहे आपके न्यूट्रोफिल जो बाहर आएंगे व्हेन देयर इज एनी एंटीजन, है ना, और ये रहे आपके मोनोसाइट जो बाहर आएंगे व्हेन दे विल कम आउट, दे विल फ्यूज, दे विल फॉर्म अ बिग WBC मॉलिक्यूल. इस बिग से मॉलिक्यूल को बोलते हैं मैक्रोफेज. तो मैक्रोफेज बड़ा सा मॉलिक्यूल होगा जो उस एंटीजन को खा जाएगा, फैगोसाइटोसिस दिखा जाएगा. क्लियर हो गई ये इंफॉर्मेशन? डन एवरीवन? सो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स डूइंग फैगोसाइटोसिस. लिम्फोसाइट्स की टाइप थी बी लिम्फोसाइट्स एंड थाइमस टी लिम्फोसाइट्स, टी हेल्पर सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक एंड टी सप्रेसर सेल्स. क्लियर हो गया एवरीवन? लेट्स गो हेड. नाउ द लास्ट टाइप ऑफ सेल्स विच आर प्लेटलेट्स. ये बताया है आपको.
हेमोपोइसिस प्रोसेस मैं बता चुकी हूँ. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ योर ब्लड सेल्स. इट इज़ हेमोपोइसिस. इन एडल्ट्स द सेलुलर एलिमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स. आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज कहाँ बनते हैं? प्लेटलेट्स कहाँ बनते हैं? रेड बोन मैरो में. प्लाज्मा कहाँ बनता है? लिवर में बनता है. राइट, डन. कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये प्लेटलेट्स हैं. लेट्स टॉक अबाउट प्लेटलेट्स एंड वाइंड दिस टॉपिक. लेट अस टॉक अबाउट प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स कहाँ बनते हैं? ऑब्वियसली रेड बोन मैरो में बनते हैं. तो रेड बोन मैरो में एक बड़ा सा सेल होता है, उसे बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट. क्या बोलते हैं? मेगा. मेगा मीन्स बड़ा. कैरियोसाइट, ठीक है, मेगा कैरियोसाइट. इट अंडरगो फ्रेगमेंटेशन, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होता है और फिर क्या बनते हैं हमारे? प्लेटलेट्स. क्या बनते हैं? प्लेटलेट्स बन गए. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स? इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ब्लड की क्लॉटिंग करता है. हमारे प्लाज्मा में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं फिब्रिनोजेन. कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है? फिब्रिनोजेन. बोलो मेरे साथ, फिब्रिनोजेन. फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट करता है फिब्रिन में. किस में कन्वर्ट करता है? फिब्रिन में. क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं प्लेटलेट्स, एंड प्लेटलेट्स क्लॉटिंग फैक्टर कन्वर्ट्स फिब्रिनोजेन टू फिब्रिन. फिब्रिनोजेन क्या है? इट इज़ अ सॉल्युबल प्रोटीन. ये एक हमारी सॉल्युबल प्रोटीन है जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है. दिस इज द इनसॉल्युबल प्रोटीन दैट विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉटिंग ब्लड. जब ब्लड की मतलब कोई इंजरी हुई है तो फिब्रिनोजेन कन्वर्ट हो जाएगा फिब्रिन में, और फिर एक ऐसा मेश जैसा स्ट्रक्चर बनता है. आपने देखा होगा कभी चोट लगती है तो एक कवरिंग सी आ जाती है, डेड स्किन की कवरिंग आ जाती है, राइट, और ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड का लॉस बंद हो जाता है. दैट्स द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट. इट हेल्प्स इन दी what? In the clotting of blood when there is any injury. Now count क्या है इसका? What is the count of platelets? Very very important. As I told you कि blood cells के count याद रखना बहुत important है. It is 1 to 1.5 lakhs per mm cube of what? Blood. ठीक है. इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे? मेरे साथ बोलो. थ्रोम्बोसाइटोसिस. एक्सीलेंट. कम हो गया तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. प्लेटलेट्स कम कब होते हैं? when the condition is, when the patient is suffering from dengue. yes मेरे बच्चों. and thrombocytosis कब होता है? when there is any injury. जब चोट लगेगी. जब चोट लगेगी तब क्लॉटिंग की जरूरत पड़ेगी. क्लॉटिंग की जरूरत पड़ेगी तो प्लेटलेट्स अपना काउंट बढ़ा लेंगे. yes or no? क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया ब्लड टॉपिक? रिवाइज करें एक बारी. लेट्स रिवाइज. एक बार रिवाइज करते हैं. गो हेड. लेट्स कंटिन्यू. ब्लड, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड. ब्लड कम्स अंडर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का टॉपिक है ब्लड. ब्लड कम्स अंडर द टॉपिक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू which does not have any fiber. It is red in color because of the pigment hemoglobin. The process of formation of blood is known as hemopoiesis. That takes place in the epiphysis, right. At the embryological stage it takes place in the yolk sac, then in the liver, and then in the spleen. Blood consists of two components, plasma and blood cells. Plasma is 90% water and 10% organic and inorganic salts along with some gases. Gases can be oxygen and carbon dioxide. Organic salts can be proteins like albumin, fibrogen can be present, and your organic substances can be hormones, your many other things, enzymes can be present, isn't it? And talking about your blood cells, there are three types of blood cells: RBCs, WBCs, and platelets. Talking about RBCs, they are discoidal in shape. Their shape is spherical, and they loses nucleus. RBC loses nucleus when it is matured enough to accommodate maximum amount of hemoglobin. One RBC can accommodate 280 million of hemoglobin pigments, so that it can combine with oxygen. One molecule of hemoglobin can combine with 4 molecules of oxygen to form oxyhemoglobin. This hemoglobin, once the oxygen is given to the tissues, take back the carbon dioxide and forms this combination and forms carbaminohemoglobin. Hemoglobin has high affinity towards carbon monoxide and can form carboxyhemoglobin. RBC count is very very important. In case of males it is 5.5 to 5.5 million. In case of females it is 4.5 to 5 million per mm cube of the blood. If the amount goes down it is erythrocytopenia. If the count increases it is erythrocytosis, isn't it? Hemoglobin count is very very important again. Reason being, in case of males it is 14 to 16 gram per 100 ml of blood. In case of females it is 12 to 14 grams per 100 ml of blood. If the count decreases, this condition is known as anemia. And then the patient, अगर patient को anemia है, the patient will feel with fatigue every time, है ना, उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा, lazy हो जाएगा वो. So the count of anemia should be maintained. Clear हो गया?
RBCs के बाद हमने पढ़ा था WBCs के बारे में. WBCs, they are leukocytes, they have no pigment, amoeboid in shape, have a nucleus present. There are of two types, granulocytes and agranulocytes. Granulocytes are of three types, band 10, basophil, eosinophil, neutrophils. Basophils have 3-lobed nucleus, eosinophils have 2-lobed nucleus, and neutrophils have multi-lobed nucleus. Multi-lobed nucleus neutrophils can be stained by any dye, and their function is phagocytosis. Eosinophils can be stained by acidic dye, and their function is when they increase their number when there is any what worm infection or any allergical reactions, right? And basophils increase their number when there is any bacterial or viral infection and can be stained by basic dye. Yes. Talking about agranulocytes, there are of two types, monocytes and lymphocytes. Monocytes will have kidney-shaped or bean-shaped nucleus, and their function is phagocytosis. It combines with neutrophils and forms a big molecule called macrophage to engulf the antigen or to engulf the pathogen, right, by the process of endocytosis or phagocytosis. Lymphocytes are of two types, B lymphocytes and T lymphocytes. B lymphocytes produces antibodies, and T lymphocytes produces three types of cells, basically TH, TC and TS. Helper is helping B lymphocytes to produce antibodies. TC is cytotoxic releasing cells, and suppressor is suppressing these two, H and C, so that autoimmune disorders does not take place. There is a process that takes place, this is done by WBCs, that is diapedesis. What is diapedesis, people? It is the process of squeezing out of WBCs from the pores present on the walls of capillaries, isn't it? This process to engulf antigen. अगर वो लिम्फ बनाने के लिए WBC बाहर आ रहा है, then it is not diapedesis. Minded, अगर वो लिम्फ बनाने के लिए WBC squeeze out कर रहा है from the walls of the capillaries, that is not diapedesis. Diapedesis is coming out of WBCs to engulf antigen. ठीक है, this process is diapedesis. WBCs का count is again very very important. अगर number ज़्यादा है, it is indicating that there is some infection in the body. अगर number कम है, the body is already suffering from some disease like malaria. अगर abnormal increase हो जाए WBC का इन लैक्स में चला जाए, then this condition is known as, इस condition को हम क्या बोलते हैं? Blood cancer. This condition is known as blood cancer or leukemia. Please write down, leukemia बोलते हैं उस condition को when the count of WBC increases. ठीक है? Done. Then we spoke about thrombocytes. Thrombocytes तो अभी हमने discuss किए. Thrombocytes में क्या था? Thrombocytes are the cells that produces platelets, जिसे हम बोलते हैं, that are produced by a big cells present in red bone marrow. That big cell को बोलते हैं megakaryocytes that undergo fragmentation, छोटे छोटे fragments बनते हैं, and that fragments releases clotting factor which converts fibrinogen, which is a protein present in, we know that there are proteins present in your plasma, right? So this is the protein that is present in the soluble form that can convert it to fibrin with the help of clotting factor, and then fibrin causes the blood to clot. ऐसे mesh जैसा जो structure बनता है. Done. If the count increases, this condition is known as thrombocytosis. इस condition को thrombocytosis बोलते हैं, and this condition takes place when there is any injury, and thrombocytopenia takes place. The count of platelets goes down when the patient is having dengue. Yes, everyone, clear हो गया blood? Done. All right.